اچھا، کچھ لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، نہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر سے حدیثیں موجود ہیں، تواتر سے حدیثیں موجود ہیں، جس میں آپ کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے عالم برزخ میں، obviously۔ اب آپ قبر کھودیں گے، کسی مردے کو نکالیں گے، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بہت پہلے ایک ملحد تھا، اس نے اعتراض کیا، اس نے کہا دیکھو جی، اگر قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے، بڑے غور سے سنیے گا جو دوست سن رہے ہیں۔ تو اس ملحد نے اعتراض کیا، اس نے کہا اگر قبر سے عذاب شروع ہوتا ہے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کیسے زیادتی ہے؟ تو کہنے لگا دیکھو، جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں برے لوگ مرے، یا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں برے لوگ مرے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں برے لوگ مرے، وہ بنسبت ان لوگوں کے جو قیامت کے قریب مریں گے اور قبر میں دفنائے جائیں گے، ان لوگوں سے تو بہت زیادہ عذاب ہوگا، کیونکہ اتنا لمبا ٹائم گزر گیا ہے، وہ ابھی تک عذاب میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو زیادتی ہے، یعنی ان کا جرم تو یہ تھا کہ وہ پچھلے زمانے میں پیدا ہوئے، ہم جتنا قیامت کے قریب آتے جائیں گے اتنا قبر کے عذاب ہم پر کم ہوگا، سمے کم ہوگا، جلدی قیامت آ جائے گی۔ اب یہ اعتراض السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے بھائی ویلکم جی بھائی۔ عامر بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک بھائی، آپ سنائیں، خیریت؟ الحمدللہ، آپ سے بات کرنے کا شوق تھا اور آج اشفاق بھائی کی بدولت یہ پورا ہوا۔ الحمدللہ، انہی کی بدولت میں بھی آپ سے متعارف ہوا، زبردست۔ تو میں ان کے ساتھ ہی آپ کی یہ ڈیبیٹس وغیرہ سنتا ہوں۔ تو جی ان کا ایکچولی سوال یہ ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے اور پھر قبر میں جیسے کہ عذاب قبر وغیرہ، یا جو نیک ہوتا ہے اس کو قبر میں دکھایا جائے گا وغیرہ، تو یہ کہتے ہیں کہ جب قبر میں ہی انسان کو وہ سب دکھایا جائے، یعنی جنت اور جہنم کا فیصلہ آلموسٹ وہیں پہ، تو پھر اس کو قیامت کے دن پھر دوبارہ یعنی حشر میں جواب دینا، تو مطلب وہ ان کا اصل میں سوال ہے کہ وہ اس کو پھر جواب دینا ہے وہاں پہ، اور پہلے قبر میں اس کے ساتھ وہ اچھا، قبر جو ہے وہ عالم برزخ ہے اور عالم قیامت اور ہے۔ عالم برزخ جو ہے وہ غیب سے تعلق رکھتی ہے۔ اچھا، اس میں جو سوال ہوں گے وہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، بنیادی طور پر 3 سوال ہوں گے، ٹھیک ہے نا، بنیادی 3 سوال ہوں گے۔ ان 3 سوالوں کے جواب ہی بنیاد ہیں کہ آپ کا اگلا سفر کیسے ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایگزام دینے جا رہے ہیں، ایگزام سینٹر بنا ہے کسی ایک جگہ کے اوپر اور آپ کا گھر دوسری جگہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو اے جو ہے، اے نمبر جو ہے یا اے نیم جو ہے یا اے الفابیٹ پہ آپ کا گھر ہے، اور آپ کو جانا ہے بی سیکٹر کے اندر جہاں پر آپ کا ایگزام سینٹر بنا ہے۔ آپ کو اے سے بی میں جانے کے لیے ایک ٹرین لینی ہے، تبھی آپ بی سیکٹر میں جا پائیں گے، مگر وہ ٹرین لینے کے لیے آپ کو ٹکٹ بھی دینی ہے، آپ کو آئی ڈی بھی شو کرنی ہے، آپ کو وہ ٹکٹ سنبھال کے بھی رکھنی ہے، اور آپ کو اگلے سٹاپ پر بھی وہ ٹکٹ شو کرنی پڑے گی، تبھی آپ بی سیکٹر کے اندر اتر پائیں گے، ورنہ آپ میٹرو اسٹیشن میں پھنسے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیسیکلی اے سیکٹر سے بی سیکٹر میں جانے کے لیے جو ٹرین استعمال ہوتی ہے وہ عالم برزخ ہے، جس کو اجداث کہتے ہیں، وہ قبر ہے۔ اچھا، کچھ لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، نہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر سے حدیثیں موجود ہیں، تواتر سے حدیثیں موجود ہیں، جس میں آپ کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے عالم برزخ میں، obviously۔ اب آپ قبر کھودیں گے، کسی مردے کو نکالیں گے، آپ کو نظر نہیں آئے گا، مگر اس کو قبر کا عذاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عالم برزخ ہے، اور قبر چونکہ وہاں پر بنی ہے تو وہ برزخی عذاب ہوتا ہے، جو انسان ان آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، جیسے اس دنیا کے اندر ہم کئی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، ایسے نہیں ہم اس کو دیکھ پاتے۔ اچھا، اب وہ جو عذاب ہے وہ یہاں سے کیوں شروع ہو جاتا ہے، وہاں کیوں نہیں امتحان ہوگا، یا وہاں امتحان کیوں ہوگا پھر اگر یہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے؟ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، میری ایک ویڈیو پڑی ہے قیامت کے اوپر ویڈیو پڑی ہے، اور جس میں ایک جو ملحد ہے اس نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ قیامت 100 سال کے اندر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، 100 سال کے اندر قیامت آ جائے گی۔
गालबन सुनन तिरमिज़ी की रिवायत थी। उस पे उसने एतराज़ किया था कि देखो अल्लाह के रसूल ने कहा 100 साल में क़यामत आ जाएगी, तो अल्लाह के रसूल को तो 1400 साल गुज़र गए हैं, क़यामत अब तक नहीं आई। लिहाज़ा हदीस भी गलत हुई और नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे थे, नाउज़ बिल्लाह। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि अल्लाह के रसूल ने लोगों की अपनी खुद की मौत को क़यामत से ताबीर किया है। उसका मतलब ये है कि जो इंसान जब मरता है उसका हिसाब शुरू हो जाता है, वही उसकी क़यामत है। आखिरत में जो यौमुल क़यामा में उठाए जाएंगे उस वक्त इज्तमाई हिसाब होगा। इज्तमाई, तो एक है इंडिविजुअल और एक है कलेक्टिव इज्तमाई। तो इज्तमाई हिसाब होगा जिसमें हुज्जत तमाम कर दी जाएगी कि आपने इस जीवन जिंदगी के अंदर कैसे आपने गुजारा है, तो वो इज्तमाई हिसाब है। तो वरना जैसे इंसान की मृत्यु होती है, वो मरता है, उसका हिसाब शुरू हो जाता है। कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं जी वो कब्र से ही मामला क्यों शुरू हो जाता है, तो यकीनन इसका जवाब जैसे मैंने दिया कि वो इंसान जब मरता है उससे शुरू हो जाता है। अच्छा, एक एतराज़ इस चीज़ के ऊपर ये भी किया जाता है, बहुत पहले एक मुल्हिद था, उसने एतराज़ किया, उसने कहा देखो जी अगर कब्र के अंदर अज़ाब होता है तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। बड़े गौर से सुनिएगा जो दोस्त सुन रहे हैं। तो उस मुल्हिद ने जी एतराज़ किया, उसने कहा अगर कब्र से अज़ाब शुरू होता है तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। तो मैंने पूछा कैसे ज़्यादती है? तो कहने लगा देखो जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुरे लोग मरे, या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुरे लोग मरे, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुरे लोग मरे, वो बनिस्बत उन लोगों के जो क़यामत के करीब मरेंगे और कब्र में दफनाए जाएंगे, जी उन लोगों से तो बहुत ज़्यादा अज़ाब होगा क्योंकि इतना लंबा टाइम गुज़र गया है। वो अभी तक अज़ाब में पड़े हुए हैं। ये तो ज़्यादती है। यानी उनका जुर्म तो ये था कि वो पिछले ज़माने में पैदा हुए। हम जितना क़यामत के करीब आते जाएँगे उतना कब्र के अज़ाब हम पर कम होगा, समय कम होगा, जल्दी क़यामत आ जाएगी। अब ये एतराज़ उसने किया। तो उसमें मैं एक चीज़ रखता हूँ, ये जो टाइम है ना, टाइम जो फ़ील होता है आपको, ये आपको 3 डायमेंशन के अंदर ही दिखाई देता है, यहीं पर फ़ील होता है। इससे परे टाइम की हकीकत क्या है हमें नहीं पता। टाइम, अब ये यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उसमें ही टाइम मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। यानी दुनिया के ऊपर जो टाइम है 24 घंटे का दिन है, वो अगर आप वीनस पे चले जाएँ या जुपिटर पे चले जाएँ, उसका टाइम फ्रेम और है। वहाँ दिन कई घंटों लंबा है दुनिया की निस्बत। तो टाइम जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके इस शरीर के ऊपर इफेक्ट करता है। जब आप इस शरीर से निकल जाते हैं और आलम बरज़ख में चले जाते हैं या आलम फना के अंदर चले जाते हैं, उस वक्त टाइम मैटर नहीं करता। उस वक्त आप टाइमलेस हो जाते हैं और आप उसी तरीके से रहते हैं। यही वजह है। अब इसकी दलील क्या है? कोई पूछ सकता है कि इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहा है कि जब क़यामत के दिन अजदास से यानी कब्रों से लोग उठाए जाएंगे, बात चलेगी होगी। एक मिनट रुकिएगा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी अच्छा, हालांकि उनकी हड्डियां जो है ना वो बुसीदा हो चुकी होंगी, मगर जब वो उठेंगे ना अपने इस जिस्म के साथ, तब वो कहेंगे यार ये तो हम चंद लम्हों के लिए लेटे थे, हमें किसने उठा दिया। ये इस बात की दलील है कि उन लोगों के ऊपर जो है वो टाइम असर नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये चीज। इसकी एक और दलील भी सूरह कहफ के अंदर असहाबे कहफ का वाकया है, जो गार के अंदर पड़े रहे और 309 साल के बाद उठे थे। ठीक है, आप उसको ये कह सकते हैं कि वो जनाब पता नहीं साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंटिफिक टाइम डायलेशन तो साइंटिफिकली प्रूवन है, एस्टैब्लिश्ड है, खुद इस पर बात चल रही है। टाइम एक खुद एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो बहरहाल ये बात है। सॉरी, मैं आपकी बात को काफ़ी लंबा ले गया, मगर आपको बताने का मकसद ये था कि ए से बी सेक्टर में जाने के लिए आपको एक ट्रेन इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिस ट्रेन में बेसिक चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। आपकी आईडी है, आपको पे करना पड़ता है, टिकट है, फिर उस सफ़र के अंदर आपको जाना पड़ता है और जो मतलूबा है वहाँ पर आपको उतरना पड़ता है। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र आमिर करने के भाई, लिए आपको ये चीज़ मिलती है। जी। ये जो कब्र में जो सवाल होंगे और उस सवाल में जो कामयाब होगा तो उसका फिर क्या एतबार होगा, मतलब सवालों में जो क्या जी? निकलेगा उसको फिर वहां आगे जी। जो कब्र में 3 सवाल किए जाएंगे इंसान को, जी, जी। तो जो जी, उनमें जी। निकलेगा तो उसको फिर आगे आगे फिर वहां जो कयामत में हिसाब होगा तो उसमें सवालात से कोई फर्क या कुछ। जी, जी, पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। वो साफ़ फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक बंदा मुवाहिद है, ठीक है? और एक बंदा रिसालत पे जी यकीन रखता है, और एक बंदा इस्लाम को बहसियत दीन मानता है।
वो क्वालिफाई कर गया है कि अब वो आगे जाए, क्वालिफाई कर गया है, ठीक। सुकून है। मगर यौमल हशर, यौमल क़यामा, उसको डिटेल से हिसाब, मैंने आपको कहा है कि वहां कलेक्टिव हिसाब के खाते खुलेंगे। यहाँ तो बेसिक आपसे सवाल पूछे गए हैं, उन बेसिक सवालों की, क्वेश्चंस की वजह से वो यहां से पास हुआ है, क्वालिफाई हुआ है कि वो आगे जाता है। और उसके बाद वहां पे डिटेल होगा, वहां हिसाब लिया जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा, मिस्काल यानी एक जो मस्टर्ड सीड होता है, इससे भी छोटा, या मस्टर्ड सीड से उससे भी छोटा आप कर लें, ये जो सन रे के अंदर यानी सूरज की शुआ में उड़ते हुए आपको डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं, इतनी भी अगर किसी ने नेकी और इतनी ही किसी ने बुराई की होगी, कल क़यामत के दिन वो उसको देखेगा, उसके सामने रख दी जाएगी। अब ये कब्र के अंदर तो नहीं होगा, ये कल क़यामत के दिन होगा। ठीक है। और कब्र का अजाब जो है उस पर तवातुर के साथ रिवायतें मौजूद हैं। ये नाइंसाफी नहीं है, इस हकीकत को खोल के बयान कर दिया गया। जो इंसान मरता है उसके बाद उसका हिसाब किताब शुरू हो जाता है, और उसका इब्तदाई आपके सामने रख दिया। ये चीज है, सिंपल। ठीक है, शुक्रिया आमिर भाई। थैंक यू मेरा भाई, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा रोमन भाई, आप भी और दूसरे भाई भी, ठीक है। इंशाल्लाह आप भी अपने अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।